Good morning to all of our students. Today we are discuss about the quality of irrigation water. In this chapter, what is first of all we know what is quality of irrigation water. The concentration and composition of dissolved constituents in a water determine its quality for irrigation usage. All irrigations water contains some salts, but the concentration and nature of salts vary. Water quality deals with the physical, chemical, and biological characteristics of water in relation to all other hydrological properties. Actually, all irrigation water contains some salts, but the concentration and nature of salts varies. The quality of irrigation water depends primarily on the total amounts of salt present and the proportions of sodium ion to other cations and certain parameters. There are agricultural crops receives moisture for their growth and development mainly from two sources. There are two sources main to irrigate the crops, agricultural crops, horticultural field crops, etc. First rainwater and then irrigation water. Rainwater is practically free from mineral matters, although it contains dissolved gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, nitrate, ammonia, argon, which which is obtained from the atmosphere. In this chapter, irrigation water consists of a two types: surface water and groundwater. Generally, we need to check irrigation water as a surface water. So, criteria for evaluating irrigation water is determined according to the purpose for which it will be used. किस चीज के लिए ये यूज करेंगे उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. तो फॉर इरिगेशन वाटर द यूजुअल क्राइटेरिया इंक्लूड, कौन कौन से इसमें क्राइटेरिया है. जनरली बहुत सारे क्राइटेरिया है इवेल्युएशन ऑफ इरिगेशन वाटर के. मेनली वी कंसिडर्ड हियर salinity, sodicity, element toxicity. All these criteria are being discussed here. Besides, many important criteria in assessing water quality for other uses, namely taste, color, odor, turbidity, temperature, hardness, pH, BOD, chemical oxygen demand, nutrient contents like NP, ETC, and other pathogenic organisms are sometimes but not usually important for irrigation water. So, sludge and manure effluents have high BOD and COD, are undesirable for aquatic life. Such waters would also be more rapidly depleted of oxygen when added to poorly drained soil. High BOD waters, when used on soil, can cause poor aeration, inadequate oxygen conditions faster than would low BOD, means biological oxygen demand. When sewage and industrial effluents are used for irrigation purpose, pathogenic organism causing various diseases to agricultural crops needs to be studied. Free of variable pathogenic organism in these effluents should be used as an irrigation water. There are various criteria are considered in evaluating the quality of water as described below. There are salinity hazards, means total concentration of soluble salts or electrical conductivity, डेसीसाइमन per meter. There is this salinity hazard. क्या है भाई salinity hazard?
ये जो है हमारा साल्ट कंसंट्रेशन के आधार पर हम ये देखते हैं कि दिस वाटर इज कैन बी यूज्ड और नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें हमारा जो है ये एक वाटर की चार क्वालिटी में हमने चार क्लासिफिकेशन में बांटा है। यहाँ इलेक्ट्रिकल डिसीजन पर मीटर में इसका यूनिट है, ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ये है साल्ट कंसंट्रेशन, और ये है इसका रिमास। तो इसमें हम देखते हैं कि लो सेलेनिटी, अब जैसे सेलेनिटी क्लासेस है, इसमें जो है देर आर 4 क्लासेस था, लो सेलेनिटी, मीडियम सेलेनिटी, हाई सेलेनिटी एंड वेरी हाई सेलेनिटी। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इसका जो इसकी है लो सेलेनिटी की है 0 to 0.25 डेसीसाइमन पर मीटर। उसी तरह से है 0.25 to 0.75 in case of medium salinity, and in high salinity 0.75 to 2.25 decisiel per meter, and in very high 2.25 to more than 2.25 means high and above. These are the range of the electrical conductivity of these 4 salinity hazard. उसी तरह से साल्ट कंसंट्रेशन है लेस देन 450 total dissolved milligram per liter, and 450 to 2000 and more than 2000 total dissolved salts milligram per liter. लो सेलिनिटी में हम देखते हैं कि ये कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस, मतलब कि जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस देन 0.25 है और टोटल डिजॉल्व साल्ट जो है 450 मिलीग्राम पर लीटर है, इससे कम है, तब कैन बी यूज सेफली, मतलब इस इरिगेशन वाटर को हम सेफली क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, फील्ड क्रॉप के लिए हम यूज कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये आगे जब हम जाते हैं तो 0.25 to 0.75 अगर इसके बीच में है, मतलब कि 0.25 से ऊपर है और 0.75 से नीचे इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, और टोटल डिजॉल्व साल्ट जो है 450 से लेकर के 2000 450 टू 2000 मिलीग्राम पर लीटर है, तब कैन बी यूज्ड विद मॉडरेट लीचिंग, मतलब कि इसको ज्यादा मात्रा में देकर कुछ लीचिंग जो हम करते हैं, लीचिंग रिक्वायरमेंट है, लीचिंग मैनेजमेंट करते हुए इसका हम यूज कर सकते हैं। अगर 0.75 से अगर इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अधिक है किसी भी इरिगेशन वाटर की, और टोटल डिजॉल्व साल्ट्स भी 2000 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक है, ये कैन नॉट बी यूज फॉर इरिगेशन पर्पस। अब इस केस में हमको मैनेजमेंट में जाना होगा कि कौन कौन से हैं साल्ट टॉलरेंट क्रॉप, उसको हम उस तरह के इरिगेशन वाले एरिया में ले सकते हैं। तो these are the actually criteria and evaluation for the salinity hazard on the basis of electrical conductivity and salt concentration. टू इसके जो है फैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम उस वाटर की देखें, और साल्ट कंसंट्रेशन है टोटल डिजॉल्व साल्ट मिलीग्राम पर लीटर में अगर देखते हैं, और वो रेंज अगर इसके इक्विवेलेंट आता है तब हम इसको उस केस में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है सोडियम हजार्ड। सोडियम हजार्ड, high concentration of sodium are undesirable in water because sodium absorbs into the soil cation exchange site, means clay particle, causing soil aggregates to break down, means deflocculation, where जहां पर सोडियम की अधिकता होगी, मोर सोडियम आयन होगा, वहां पर डिस्पर्सन होगा, डिफ्लोकुलेशन होगा। सीलिंग द पोर्स ऑफ द सॉइल एंड मेकिंग इट इम्परमेबल टू वाटर। सीलिंग ऑफ द पोर्स, क्ले जा करके 20-25 सेंटीमीटर फिक्स कर जाएगा, हार्ड पेन बनाएगा, और वो क्रिएट करेगा इम्परमेबल टू वाटर फ्लो। द टेंडेंसी ऑफ सोडियम टू इंक्रीज इट्स प्रोपोर्शन on the cation exchange side at expense of other types of cations is estimated by ratio of सोडियम आयन, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के आधार पर अगर इसको हम देखते हैं सोडिसिटी हजार्ड, सोडियम हजार्ड, तो इसका जो है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, मतलब कि
सोडियम आयन विथ रिस्पेक्ट टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। अगर इसका वैल्यू अधिक है सोडियम आयन का उस आयन में इन कंपेरिजन टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, देन वी कंसीडर्ड है कि ये सोडियम हजार्ड्स है, सोडियम की इसमें अधिकता है। और डी adjusted sodium absorption ratio is a value corrected to account for the removal of calcium and magnesium by their precipitation with bicarbonate and carbonate ions in the irrigation water added, giving higher values for adjusted sodium absorption ratio than for SAR. The sodium hazard of irrigation water expressed through the sodium absorption ratio. There are four types: S1, S2, S3 and S4, and these are the water classes, and these are the SR values, and these are the remarks what it is applicable for crops or not. तो इसको जब हम S1 में देखते हैं, इसको हम लो मीडियम हजार्ड क्लास में डालते हैं। लो मीडियम हजार्ड मतलब कि ये जो है उतना हार्मफुल नहीं है। इसका वैल्यू है 0 to 10 SAR वैल्यू। जो इसका वैल्यू होगा सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का, ये कैल्शियम और सोडियम आयन के जो रेशियो है जिस फॉर्मूला के अनुसार, तो ये हमारा होगा 0 to 10। ये लिटिल है और नो हजार्ड मतलब कि ये इरिगेशन कैन बी यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस। ये कोई भी हजार्ड क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन जब हम S2 में जाते हैं, मीडियम सोडियम हजार्ड, इसका जो रेंज है 10 to 18, जो सोडियम एब्जॉर्प्शन का वैल्यू है ये है 10 to 18। ये है एप्रिसिएबल हजार्ड बट कैन बी यूज्ड विथ एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। अगर हम इसमें कुछ जिप्सम मिला करके इसका कुछ विथ हम मैनेजमेंट करके इस क्लासिफिकेशन के अंदर में जो आता है जिसका कि वैल्यू 10 to 18 है SR वैल्यू, उसको हम यूज कर सकते हैं विथ मैनेजमेंट। लेकिन अगर सोडियम हजार्ड का जो वैल्यू है S3 और S4 में आता है, मतलब हाई सोडियम हजार्ड एंड वेरी हाई सोडियम हजार्ड के बीच में अगर आता है, ये मोर देन 18 से अगर इसका SR वैल्यू अधिक है, मतलब कि सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो वैल्यू अधिक है, ये जो इरिगेशन वाटर है ये अनसेटिस्फैक्टरी फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप, ये बहुत सारे क्रॉप्स के लिए सुटेबल नहीं है। तो ये हमने देखा एक सेलेनिटी हजार्ड जिसका कि 4 भाग में बांटा गया था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड टोटल डिसॉल्व साल्ट्स के आधार पर ये कौन सा यूज करने लायक है, कौन सा यूज नहीं करने लायक है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सोडियम हजार्ड, हमने अभी डिस्कस किया। अब फिर नेक्स्ट है साल्ट इंडेक्स। ये क्या है? इट इज आल्सो यूज्ड फॉर predicting sodium hazards. It is the relation between sodium, calcium and calcium carbonate present in irrigation water. अब irrigation water में सोडियम आयन, कैल्शियम आयन एंड कैल्शियम कार्बोनेट के परसेंटेज के आधार पर हम साल्ट इंडेक्स को इससे कंसीडर करते हैं। साल्ट इंडेक्स का क्या है वैल्यू निकालने का? टोटल सोडियम आयन प्रेजेंट इन द इरिगेशन वाटर माइनस 24.5 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट स्टार्ट टोटल कैल्शियम आयन माइनस कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इनटू 4.85 being reckoned as कैल्शियम। इस वैल्यू पर अगर हम सोडियम का वैल्यू पुट करें आयन का उस इरिगेशन वाटर में, और कैल्शियम आयन का वैल्यू टोटल कैल्शियम कितना है और कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट में कितना है, और इस 4.8 फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो साल्ट इंडेक्स हमारा निकलता है। उसके आधार पर फिर हम क्या करते हैं, वेयर ऑल क्वांटिटी बीइंग एक्सप्रेस्ड इन ppm मतलब कि पार्ट्स पर मिलियन एंड ऑल वैल्यूज ऑफ मैग्नीशियम बीइंग नोन एज कैल्शियम। अगर इसमें कुछ मैग्नीशियम इरिगेशन वाटर में आता है तो उसको एज ए कैल्शियम के साथ ट्रीट करके पीपीएम में उसको ऐड करते हैं और उसका वैल्यू जो है हम यहाँ पर मतलब कि मैग्नीशियम को भी यहाँ पर ले आते हैं। द साल्ट इंडेक्स इज निगेटिव। अब अगर साल्ट इंडेक्स का जो वैल्यू है ये आता है निगेटिव मीन्स -24.520। अगर जीरो से निगेटिव की तरह है फॉर इरिगेशन वाटर
of high quality and any positive value of the salt index is harmful for the irrigation purpose. अगर ये वैल्यू जो है -24.5 to 0 के बीच में है तो ये हम इरिगेशन बेस्ट इरिगेशन वाटर है और इसको यूज हम कर सकते हैं। लेकिन अगर 0 से वैल्यू इसका अधिक आता है, पॉजिटिव आता है, मतलब कि 1 2 3 4, देन हम ये हार्मफुल फॉर इरिगेशन हो जाता है। मतलब कि इस पूरे फॉर्मूला से हम निकाल लेते हैं उसका साल्ट इंडेक्स कैल्शियम आयन और सोडियम आयन से, और उसके आधार पर इसको ये हार्मफुल है कि गुड है, वो इसके इस आधार पर हम कर लेते हैं। The relative degree on both sides, negative and positive side, depends on the magnitude of the salt index factor. These are the salt on the basis of salt index factor. Right? अब हम नेक्स्ट आते हैं बाइकार्बोनेट हजार्ड्स। ये क्या है बाइकार्बोनेट हजार्ड? The bicarbonate HCO3 minus anion is an important in irrigation water as regards calcium, means calcium bicarbonate, and to a lesser degree also to magnesium as their carbonates in the soil. This brings about a change in the soluble sodium percentage in the irrigation water and therefore an increase of sodium hazards. इसके अंदर जो बाइकार्बोनेट्स रहता है और वो सोलेबल सोडियम के साथ अटैच करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है, जिससे कि वो सोडियम हजार्ड्स करने लगता है और सोडियम की अधिकता आ जाती है। इस चीज को हम चेक कैसे करते हैं? तो रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट, इसको हमको क्वांटिफाई करना पड़ता है। अब ये क्या है, इवेलुएट करना पड़ता है। रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट RSC is used to evaluate the quality of irrigation water and is expressed in milli equivalent. इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट को? तो रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज इक्वल टू कार्बोनेट आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन माइनस कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन। मतलब कि जो हमारा रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट है, ये जो हम उसको कैलकुलेट करने के लिए कार्बोनेट आयन और प्लस बाइकार्बोनेट आयन को हम इवेलुएट करते हैं एंड माइनस कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट का वैल्यू आएगा, जो कि मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में होता है। अब इसके वैल्यू के आधार पर हम इसके वाटर क्वालिटी को डिटरमाइन करता है कि कैन बी यूज और नॉट यूज। इसका वैल्यू रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट का जो वैल्यू है वो अगर लेस देन 1.25 है तो वाटर कैन बी यूज सेफली। मतलब कि हम इस इरिगेशन क्वालिटी का जो वाटर है इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर 1.25 to 2.5 के बीच में है तो वाटर कैन बी यूज्ड विद सर्टेन मैनेजमेंट। इट मींस हम इसमें जिप्सम मिला करके उसका वाटर को हम यूज कर सकते हैं। और अगर मोर देन 2.5 अगर इसका वैल्यू है रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट का, तो ये अनसुटेबल फॉर इरिगेशन पर्पस, मतलब कि ये सुटेबल नहीं होगा। तो ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ बाइकार्बोनेट हजार्ड हम इरिगेशन वाटर के क्वालिटी को इवेलुएट करते हैं। और इसका जो क्राइटेरिया है बाइकार्बोनेट हजार्ड्स का, ये तीन चीज है, तीन क्लासिफिकेशन है। लेस देन 1.25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, देन मींस वाटर कैन बी यूज। इफ RSC value means residual sodium carbonate value in milli equivalent per liter 1.25 to 2.5, it means with certain management with gypsum it can be used for irrigation purposes, but more than 2.5 the value of RSC residual sodium carbonate unsuitable for irrigation. This is very dangerous for the irrigation purpose,
if this type of water quality can be applied, then what will be, क्या होगा कि उसका डिस्पर्सन होगा, सोडियम की अधिकता हो जाएगी, डिफ्लोकुलेशन होगा, हार्ड पेनिंग होगी, वाटर लॉगिंग होगी, पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस जो होगा रूट्स का वो इफेक्ट पड़ेगा, अल्टीमेटली जो है हमारा क्रॉप रिडक्शन हो जाएगा। फिर लास्ट हम जो है नेक्स्ट आते हैं बोरॉन कंसंट्रेशन। ये क्या है भाई बोरॉन कंसंट्रेशन? ये भी एक क्राइटेरिया है जिसके आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और ये आयरन टॉक्सिसिटी बोरॉन टॉक्सिसिटी के आधार पर इसमें हमने दिया है, इसका भी अलग क्लासिफिकेशन है। तो ये क्या है? इट इज एविडेंट दैट बोरॉन इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट बट द अमाउंट रिक्वायर्ड इज वेरी स्मॉल। मतलब कि बोरॉन क्या है? एक तरह का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट amount required is very small for the plant. It means it is micronutrient. The occurrence of boron in toxic concentration in certain irrigation water makes it necessary to consider this element in assessing the water quality. The permissible limit of boron in irrigation water is given this table. Permissible limit of boron in irrigation water in relation to different categories of crop. These are the categories, boron classes. These are the boron concentration with respect to sensitive crop, semi-tolerant crop, and tolerant crop. And these are the remark whether can be used or cannot be used for the irrigation purposes. तो अभी हम इसमें बात करेंगे कि इसका जो है परमिसिबल लिमिट क्या है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बोरॉन क्लास है, ये इसमें हमने बांटा है वेरी लो, लो, मीडियम, हाई एंड वेरी। अब ये 5 क्लासिफिकेशन जो है इसके आधार पर हम देखते हैं कि इसमें से कितना है जो सेंसिटिव क्रॉप्स के लिए। अब सेंसिटिव क्रॉप्स मीन होता है बोरॉन के लिए कि वो एक टॉलरेट है, एक नॉट टॉलरेंट है। अगर मान लीजिए कि बोरॉन का कंसंट्रेशन थोड़ा भी हाई हो जाता है और वो अगर प्लांट में जाता है तो वो प्लांट जो है शो करने लगता है टॉक्सिसिटी, हम रखते हैं सेंसिटिव क्रॉप्स में। अगर वो एक परमिसिबल लिमिट से अधिक भी चला जाता है तब भी वो प्लांट सरवाइव करता है, शो नहीं करता है, तो उसको सेंसिटिव सेमी टॉलरेंट में रखता है। और एक है कि एक परमिसिबल लिमिट से अधिक जाता भी है तो भी वो टॉलरेंस क्रॉप रहता है और वो सरवाइव कर जाता है, उसको हम टॉलरेंस में रखते हैं। तो बोरॉन की टॉक्सिसिटी बोरॉन के कंसंट्रेशन के आधार पर सेमी सेंसिटिव क्रॉप्स, सेमी टॉलरेंस क्रॉप एंड टॉलरेंस क्रॉप को हमने इसमें वेरी लो में अगर हम देखते हैं तो फॉर सेंसिटिव क्रॉप्स के लिए लेस देन 0.33 ppm पर पार्ट्स मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन ppm, मतलब कि लेस देन 0.33 ppm अगर है, इससे कम है तो ये सेंसिटिव क्रॉप्स के लिए ठीक है, लेकिन इससे अधिक होता है तब ये हार्मफुल हो जाएगा सेंसिटिव। उसी तरह से 0.67 ppm, ये इससे अगर नीचे है तो सेमी टॉलरेंस क्रॉप्स के लिए ठीक है, लेकिन इससे जैसे ही अधिक होगा फिर ये सेमी टॉलरेंस क्रॉप्स को भी हार्मफुल इफेक्ट इसमें दिखने लगेगा और प्लांट्स जो है वो अनप्लीजेंट शो करने लगता है। उसी तरह से लेस देन 1 ppm तक ये टॉलरेंस क्रॉप भी जो है वो हाईली टॉलरेंस क्रॉप है, जो मतलब मैक्सिमम बोरॉन को टॉलरेंट कर सकता है, वो भी 1 ppm तक। अगर इससे अधिक होता है तो ये भी हार्मफुल हो जाएगा। These are the 3 crops can be used safely। अगर इतना इसका वैल्यू है, ppm है 0.33, 0.67, 0.1, तो ये डिफरेंट जो सेमी टॉलरेंस क्रॉप्स हैं, टॉलरेंस क्रॉप है, सेंसिटिव क्रॉप है, इसके कैन बी यूज, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। अब लो में, लो क्लास में आते हैं 0.33 to 0.67। अगर ये इसके बीच में ppm में अगर है तो ये सेंसिटिव क्रॉप्स के लिए ठीक है, और 0.67 to 1.33 ये सेमी टॉलरेंस के लिए है, और 1 से 2 ये अगर इतना है तो ये विथ मैनेजमेंट करना होगा इसका बोरॉन का,
तब हम ये वाला जो पीपीएम है, ये जो रेंज दिया हुआ है इस पीपीएम का इरिगेशन वाटर है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं और इसको सम मैनेजमेंट के साथ हम इसको इस तरह के इरिगेशन वाटर जिसमें इतना बोरॉन कंसंट्रेशन है, इसको हम किया जा सकता है। लेकिन अब मीडियम हाई एंड वेरी हाई, इसका की जो जो रेंज है, ये कैन नॉट बी यूज फॉर सुटेबल इरिगेशन पर्पसेस। ये हम इस तीनों के लिए भी यूज नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर इस तरह का, अगर इस रेंज में अगर पीपीएम में बोरॉन कंसंट्रेशन है, तो सम मैनेजमेंट के साथ हम लोग इसको भी, अगर मजबूरी है तो उसका यूज किया जा सकता है, जिसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। अब मीडियम में 0.67 to 1 ppm फॉर सेंसिटिव क्रॉप एंड 1.33 to 2 ppm for semi-tolerant crop and 2 to 3 ppm for tolerant crop. And in case of boron class high, 1 to 1.25 ppm for sensitive crops and 2 to 2.25 ppm for semi-tolerant crop and 3 to 3.75 for tolerance crop, and very high, more than 1.25 ppm, and in case of semi-tolerant crop more than 2.5 ppm and more than 3.75 ppm for tolerant crop. These are the actual classification on the basis of boron concentration with respect to different types of crop के बारे में हमने देखा। अब इतने चीज को देखते हुए ये हमारा इरिगेशन जो है वाटर क्वालिटी के आधार पर हमने किया है। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है, तो नेक्स्ट जो जो क्लास होगा उसमें हम क्लोराइड कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि उसका ये है, क्लोराइड कंसंट्रेशन होगा, सोलेबल सोडियम परसेंटेज होगा, लिथियम होगा, मैग्नीशियम हजार्ड्स होगा, और कुछ प्रॉब्लम होगा सॉइल। इससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि कितने कितने और भी इवैल्यूएटिंग क्राइटेरिया है जिसके आधार पर कि हम इरिगेशन क्वालिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं और इसके बारे में हम जान सकते हैं। तो फिर आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे इरिगेशन वाटर का यूज किया जा सकता है और कौन कौन सा क्राइटेरिया है। सैलिनिटी हजार्ड्स था, सोडियम हजार्ड्स था, साल्ट इंडेक्स था, बाइकार्बोनेट हजार्ड्स था, एंड बोरॉन कंसंट्रेशन के आधार पर आज हम लोगों ने बात किया कि इरिगेशन क्वालिटी का कैसे हम इसका क्राइटेरिया का इवैल्यूएशन करेंगे फॉर इरिगेशन वाटर। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट में क्लोराइड हजार्ड्स, मैग्नीशियम हजार्ड्स और भी जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर हम लोग। थैंक यू। We are discuss